Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. So this video is again about economic and financial affairs, and also we'll be studying some general awareness topics which are helpful for your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So we'll be starting with our news articles of November month. But before that, I would like to inform you that Ruhi ma'am is an educator on Unacademy. There she takes SEBI Grade A and RBI Grade B comprehensive courses. You can join her by using the code SC10 for getting a discount of 10%. Okay, so first of all, the main thing is that you need to get a subscription on Unacademy for accessing these courses which are taken by her. The courses which she takes are RBI Grade B for Phase 2, then SEBI Grade A for Paper 2, Banking Financial Economic Awareness, Current Affairs for all bank exams, Insurance Awareness for all insurance exams. So these are the courses which are taken by Ruhi ma'am on Unacademy Plus. Okay, so for getting these courses, you need to get the subscription on Unacademy. And when you go for the subscription, you just have to use the code SC10 so that you can get a discount of 10%. Okay, you would be given 10% off if you use this code. So do not forget to use this code and go and subscribe now on Unacademy. So this code is basically applicable everywhere. Like whenever you want to access any free content which is available over there, like the videos, the PDFs, the mock test, you can use this code SC10. Okay, and whenever they ask you for any invite code, you just have to write SC10 and you would be able to access all the content which is available there. Okay, so this is the code. Now there are also some other educators who are taking these courses, so you can join their courses as well by using SC10 code. Okay, the different subjects would be taught by different educators. Okay, so this is the Telegram channel that you could join, like the Simple Concepts by Ruhi ma'am. This is the name of the Telegram channel, from where you would be able to get all the study material which is related to your course. Okay, also there you would be getting the information about the upcoming courses. Okay, and the study material like the PDF, the video links. Okay, and the series, the test series which is going on. Okay, and your doubts would also be solved over there, so you can join this Telegram channel. So this is the topic that we are starting with: digital taxation and OECD. It has been reported that this particular term, okay, these two terms, this is on a weak pillar. तो अब इस चीज़ को वीक बोला जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिजिटल टैक्सेशन एंड किस कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है. तो अभी जो रिसेंटली न्यूज़ निकली है इससे रिलेटेड नवंबर में, उसमें ये बोला गया है, एक डिस्कशन के थ्रू हमें ये पता चला है दैट द tax challenges pertaining to digitalization of the economy have been a contentious issue over the past decade. ओके, तो आपको पता है कि इकोनॉमीज जो हैं वो, दिस इज द एरा वेयर द डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज बेसिकली टेकिंग प्लेस इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब. ओके, जो हमारी इकोनॉमीज है वहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है. ओके, सो दिस इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. तो ये जो एरा है इसमें ये बोला जा रहा है दैट द tax challenges they have been increased now because of digitalization. अब उससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं वो हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है दैट OECD इज नथिंग बट इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट. ओके, दिस इज द OECD. तो ये एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर आय रखती है. ओके, सो दिस कीप्स एन आई ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड. ओके, सो ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कमिटेड है डेमोक्रेसी से. Okay, who basically say that they are democracies and they are committed to democracy, and also where the market is feasible.
Okay, so the members of this organization belong to those particular kind of section जहाँ पे डेमोक्रेसीज हो, उनका मार्केट फिजिबल हो। इसका मतलब ये है जो उनकी परचेजिंग पावर वो ठीक ठाक हो। जिस कंट्री में आप मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे देर आर सम पैरामीटर्स दैट यू नीड टू चेक। तो वो पैरामीटर्स जो हैं उसमें से ये भी है कि जो OECD कंट्रीज़ के मेंबर हैं वहाँ पे डेमोक्रेसीज जो हैं वो काफ़ी हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो मार्केट ज़ीरो जो मार्केट इकोनॉमी है वो भी अच्छी खासी चलती है। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड OECD। तो अब क्या बोल रहे हैं दैट वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ फोकस ऑफ OECD या G20 बोल लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारी कंट्रीज जो G20 में है वो OECD की भी पार्ट हैं। तो इसमें अब एक वर्ड आया है BEPS, जो हम बोलते हैं उसको बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो BEPS क्या है हमें वो समझना पड़ेगा, एंड वील बी लर्निंग दैट व्हाट इज BEPS बिकॉज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ओके, तो इन्होंने बोला है कि दैट दिस वुड बी लीडिंग टू द 2015 BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि जो BEPS का अभी जो पोजीशन है, इट वुड बी लीडिंग टू द 2015 BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट। तो 2015 की BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट क्या है, वी विल ऑल्सो बी लर्निंग दैट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज BEPS, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सो दिस बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, देखिए जो इसको हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, इसका जो हमने नेम देखा है, ओके, जो टाइटल है बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो हम उससे ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। अगर आपको इसको याद रखना है तो बेस इरोशन, यहाँ पे इसका मतलब ये है आपका जो बेस है, ओके, वो इरोड हो रहा है। इसका मतलब ये है आपके जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, ओके, जो कंपनीज गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी वो इरोड होती जा रही हैं धीरे धीरे, एंड द प्रॉफिट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दोज मल्टीनेशनल कंपनीज और द बिग टेक कंपनीज। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो कैसे बिग टेक कंपनीज के फेवर में जा रही है, एंड कैसे जो आपकी गुड प्रैक्टिसेस है वो इरोड हो रही हैं। तो टैक्सेस से बचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो, उसकी वजह से देर आर मिसमैचेस इन द टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस पे ना, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी कंपनी है वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है अपने बिजनेस से, उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज़ द फैक्ट। तो टैक्सेस से बचने के लिए दे आर अडियरिंग टू सम बैड प्रैक्टिसेस। ओके, तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज जो टैक्स उनको पे ना करना पड़े उसके लिए अपनाई जाती हैं, तो उसी को हम BEPS बोल रहे हैं। सो बहुत इजी है BEPS, जो हमें टर्म दिख रहा है बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, हम उसी से समझ सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, बेस एरोशन मतलब उनकी जो बेस प्रैक्टिस है, जो कि गुड प्रैक्टिस है, उसको इरोड करते जा रहे हैं। जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो अपने साइड करते जा रहे हैं। तो कैसे करते जा रहे हैं, टैक्सेस जो उनके हैं जो उनको पे करने हैं, दे आर नॉट पेइंग दोज टैक्सेस। Okay, so some of the schemes used are illegal, most are not. Okay, some of the schemes are illegal, लेकिन अब ये जो टैक्सेस मल्टीनेशनल कंपनीज पे नहीं कर रहे हैं उसके वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। तो इसीलिए जो OECD है उसका ध्यान इन प्रैक्टिसेस की तरफ गया। So BEPS practices cost countries USD 100 to 240 billion in lost revenue annually। देखिए आप एनुअली कंट्रीज में $100 to 240 बिलियन का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। तो इसमें ये बोला गया दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इलीगल, येट सम ऑफ देम आर इलीगल विच आर कॉजिंग दिस मच लॉस। ओके, सो दिस इज द आइडिया हियर। सो अभी हम उसका और जो है वो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं दैट व्हाट इज BEPS। तो इनका जो काम है, दिस कमिटी वर्क्स विद इन OECD, जिसको हम G20 बोल रहे हैं, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर ऑन BEPS ओवर 135 कंट्रीज एंड jurisdiction आर कोलैबोरेटिंग ऑन। ओके, 135 कंट्रीज आर देयर which are collaborating on these few points। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है implementation of 15 measures to tackle tax avoidance।
ठीक है, तो 15 पॉइंट्स का एक ऐसा चार्ट बनाया गया है जिसपे ऐसे मेजर्स लिखे हुए हैं, ऐसे तरीके लिखे गए हैं जिससे कि जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको टैकल कर पाएंगे ये कंट्रीज। टू इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल्स। सी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो किसी भी कंट्री में जाती हैं तो वहाँ के डोमेस्टिक टैक्स रूल्स को फॉलो करती हैं फॉर श्योर, वो तो करना ही पड़ेगा, बट अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो हैव टू अडियर टू दिस इंटरनेशनल टैक्स रूल्स। ओके, अब जो अमेरिका की कंट्री से आया है इंडिया मान लीजिए, तो जो एमएनसी यहाँ पे आई है इंडिया में, उसको इंडिया के टैक्स रूल्स फॉलो करने हैं, बट अलॉन्ग विद दैट जब वो अमेरिका से यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं और यहाँ से प्रॉफिट करके वो अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका वाले भी उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे ना कि आपने इतना पैसा कमाया तो इसका टैक्स उनको चाहिए होता है। ओके, सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल टैक्स रूल्स हैं उनको उनको एक कोहेरेंस की ज़रूरत है, उनको यूनाइट करने की ज़रूरत है। वो स्टैगर हो गए हैं। Okay, they are like scattered. They are something else in China, something else in India, something else in this America. तो उन सबको यूनाइट करने की ज़रूरत है। सबके जो ओपिनियंस और आइडियाज़ हैं उनको कलेक्ट करके हमें एक there should be the singularity in the international tax rules. ओके, एंश्योर अ मोर ट्रांसपेरेंट टैक्स एनवायरनमेंट। जो टैक्स एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो BEPS है ये उसके कुछ उसने मेजर्स बताया है दैट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन विच द कंट्रीज हैव टू एक्ट अपॉन। ओके, सो व्हाट आर द कंसर्न्स विद BEPS? ओके, मैंने आपको बताया जो BEPS है वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू हम टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो। तो जो BEPS है उसकी वजह से क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं मैंने आपको बताया दैट देयर इज रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू। ओके, $100 to 240 billions आर लॉस्ट एनुअली इन द कंट्रीज बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एक ह्यूज लॉस है जिसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तो बढ़ रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट जो कंपनी है वो कैपिटल यूज़ कर रही है उस कंट्री का, उस कैपिटल जो कंट्री है वो कैपिटल के साथ साथ मार्केट यूज़ कर रही है उस कंट्री का। ओके, रिसोर्सेस यूज़ कर रही है, लैंड यूज़ कर रही है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूज़ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो MNCs यूज़ करती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके। सो नाउ द पॉइंट इज़ दैट जब कंट्री MNCs को इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है तो जो MNCs हैं वो उनको रिटर्न में टैक्सेस देंगे, बट बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस लाइक BEPS इनकी वजह से टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट्स है वो उनका जो रियल शेयर है, ओके, वो जो फेयर शेयर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है थ्रू MNCs। तो इसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम कलेक्ट हो रहा है, तो जो कंट्री की इकोनॉमीज हैं वो डाउन, दे आर गोइंग डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंट्रीज आर नॉट एबल टू लॉन्च स्कीम्स एंड ऑल। उनके जो लोग हैं वहाँ के जो इंडिजिनस वर्कर्स हैं, ओके, तो उनके लिए जो स्कीम्स वगैरह हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रही हैं। तो क्योंकि टैक्सेस कलेक्ट सी, तो कंट्री वुड बी डेवलप्ड ओनली इफ इट हैज़ मोर टैक्सेस फ्रॉम पीपल। दैट इज़ द सिंपल लॉजिक, है ना। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो खुद से तो कमाती नहीं है ना, कुछ खुद से तो नहीं कमा सकती, गवर्नमेंट इनफैक्ट खर्च ही करती है, बट हाउ गवर्नमेंट अर्न्स, इट अर्न्स फ्रॉम द टैक्सेस। आप जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एंड स्पेशली फ्रॉम दिस बिगर MNCs, ओके, सो जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम हो गया है, डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट्स डोमेस्टिक स्मॉल फर्म्स। अब देखिए मैं आपको बता रही थी दैट दीज प्रैक्टिसेस दीज आर इम्प्लाइंग द डोमिनेंस ऑफ बिग टेक कंपनीज, okay, because of which the small firms are affected. Now the small firms are affected, तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको मिल रहा है, तो आपके जो डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज है वो बंद पड़ती जा रही हैं।
तो इसमें भी नुकसान किसका होता है? इसमें भी नुकसान हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी में एमएनसीज खोली गई हैं उन्हीं का होता है, उनके बिजनेसेस का लॉस हुआ. सो दिस इज नॉट फेयर. ओके, सो दिस बेसिकली अंडरमाइंस द फेयरनेस. तो थर्ड पॉइंट जो है, जो बीईपीएस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो है सेट्स रॉन्ग प्रेसिडेंट. ओके, अब देखिए एक एमएनसी है, वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. ओके, दे आर लीगली अवॉइडिंग द इनकम टैक्स. मैंने आपको बोला था दैट सम प्रैक्टिसेस आर इलीगल, नॉट ऑल ऑफ देम आर इलीगल. ठीक है, दीज आर द लीगल प्रैक्टिसेस बट सम ऑफ देम आर इलीगल. तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, वो इलीगली, जो इलीगली और लीगली किसी भी तरीके से इनकम टैक्स को पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी तरफ एक गलत इंस्पिरेशन जा रहा है ना, दैट दीज पीपल आर नॉट पेइंग, देन व्हाई शुड वी पे. They also, the other one also wants to earn some money, no, they also want to have some profit. The other company also wants to have some profit, तो वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे. So this the whole, this would become a whole wrong cycle, the cycle of wrong things, the cycle of wrong ideas. Okay, so this is how it is setting the wrong precedent. So as I told you that we will also be talking about 2015 BEPS Action 1 report, जो उसमें लिखा हुआ था, न्यूज़ में यही बोला गया था कि जो BEPS प्रैक्टिसेस हैं, OECD ने बोला था इट इज़ लीडिंग अस टुवर्ड्स 2015 BEPS Action 1 रिपोर्ट. ठीक है, 2015 में एक रिपोर्ट लाई गई थी, वो क्या थी हम वो देखते हैं. 2015 में OECD ने ही एक्शन प्लान 1 रिपोर्ट को रिलीज़ किया था. उसमें कुछ पिलर्स की बातें हुई थी. वो कौन से पिलर्स हैं? दे वुड गाइड द टैक्सेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. ओके, सो उसमें 5 पॉइंट्स की बात हुई थी. फर्स्ट वन इज न्यूट्रलिटी, सेकेंड वन इज एफिशिएंसी, थर्ड वन इज सर्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी, फोर्थ इज इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस, and fifth one is flexibility. So these are some of the points upon which the governments and the member countries of OECD they have to ponder upon, like the neutrality. Okay, biasness नहीं होनी चाहिए. Okay, the big tech companies, small firms और जो मीडियम बिजनेसेस हैं उनके बीच में बायसनेस नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को सबको जो है वो सेम लेवल पे रखना चाहिए. ओके, वट एवर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट इज गिवन टू द दिस बिग टेक कंपनीज, सिमिलरली द अदर बिजनेस शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड. सो उसकी न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे. सी द बिग टेक कंपनीज दे आर गोइंग टू अर्न मोर, दैट इज सो ऑब्वियस. ओके, तो जो एफिशिएंसी है, ठीक है, आप जितना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंट्री का, जितना कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंट्री का, जितना मार्केट शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंट्री का, तो उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद जो एमएनसीज या कोई भी बिजनेस फर्म है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओके, प्रोपोर्शनेट एफिशिएंसी शुड बी देयर, प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्सेज दैट दे आर यूजिंग. तो उसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो उसी के बेसिस पर एक स्कोर कार्ड तैयार करना चाहिए. यहाँ पे वो बात हो रही है. सर्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी. Okay, then the rules of the company, okay, they should be certain and simple. Effectiveness and fairness, this we have already understood that what are they trying to say with these words like effectiveness and fairness. Flexibility, see, flexibility is the it is one of the most important things for which the MNCs are they are attracted to this term flexibility. जिस कंट्री का मार्केट जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ओके, जितने जो लेबर लॉज होंगे वो जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे एमएनसीज अट्रैक्ट होती हैं. तो चाइना में जो है वो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस चाइना में क्यों जो कंपनीज है क्यों खोलते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है उनके मार्केट में, दैट इज़ वाई.
है ना. So these are some of the points on which the countries, the member countries have to think upon. Then OECD taxation on digitalization and BEPS. ये टर्म्स को कनेक्ट करके कुछ बातें कही गई हैं. जो डिबेट हुई थी उसमें इट वाज फोकसिंग ऑन टैक्सिंग डिजिटल कंपनीज peaked when countries started implementing uncoordinated unilateral measures. ओके, सो जो आपकी डिजिटल कंपनीज हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड मेजर्स को अब जो इम्प्लीमेंट करने लगी हैं, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको OECD ने बोला है दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस these कंपनीज, दैट व्हाट आर दे डूइंग. ओके, 2019 में भी OECD ने एक पॉलिसी नोट रिलीज किया था जिसमें ये बोला गया था दैट रिन्यूड इंटरनेशनल डिस्कशंस विल फोकस ऑन 2 सेंट्रल पिलर्स. मैंने आपको बोला कि पिलर्स की बात हो रही, तो पहला पिलर, 2 पिलर्स हैं. पहला पिलर जो है वो आपका एड्रेस करेगा जो भी चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. ओके, एंड ऑल्सो इट विल फोकस ऑन द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स. तो पिलर 1 का जो एम है, इट इज़ टू रीच अ ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन अडेप्टिंग द एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स इन अ वे दैट एक्सपैंड्स दीज राइट्स फॉर मार्केट ज्यूरिस्डिक्शन. ओके, आपके जो मार्केट ज्यूरिस्डिक्शन है एंड टैक्सिंग राइट्स हैं, उनको कैसे साथ में चल के काम करना है. ओके, एंड जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उनको अर्न करने का भी एक फेयर तरीका होना चाहिए, नॉट दैट यू आर अवॉइडिंग द टैक्सेस. ओके, एंड अगर आपके जो ऐसे प्रैक्टिसेस जो लोग फॉलो करते हैं, जो भी बिजनेस फर्म्स फॉलो करते हैं, उन दे शुड बी दे शुड बी अंडर द मार्केट ज्यूरिस्डिक्शंस. ओके, जो मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, दे ऑब्वियसली विल हैव टू फेस द मार्केट ज्यूरिस्डिक्शंस. ओके, सो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग दीज राइट्स फॉर मार्केट ज्यूरिस्डिक्शन. ओके, the OECD blueprint on pillar 1 provides a solid foundation for a future agreement that would adhere to the concept of net taxation income. ठीक है, तो नेट टैक्सेशन ऑफ इनकम है, आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसके ऊपर आपको पूरा टैक्स पे करना होगा. अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड बी एज सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्टर एज पॉसिबल. ओके, जो आपका पिलर 2 है, it will sort out the remaining BEPS concerns, collectively BEPS 2 project के नाम से. जो पिलर 2 है उसमें ये जो ऊपर पिलर 1 में बातें हुई हैं, उनके अलावा जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको हम पिलर 2 के अंडर डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट आर द कंसर्न्स नाउ. ओके, तो जो चेंजेस इन इंटरनेशनल रूल्स है, मैंने आपको बताया था जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो स्कैटर हो चुके हैं. Okay, they are changing every now and then. The reallocation of taxing rights under Pillar 1 could lead to significant changes in the international tax rules under which multinational businesses operate and could have important consequences on the overall tax liability of businesses and tax revenues of the country. So वही बोल रहे हैं कि जो different countries है वहाँ पे different international rules अब बना दिए गए हैं. ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ ट्वीक्स लाके उनको चेंज करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑल इज हैपनिंग. ओके, द पॉलिसीज दे हैव चेंज्ड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ओके, दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. So that is also one of the major concerns, that the international rules are being changed. Then policy note lacks consensus. ओके, इट इज़ नॉट अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट. जो पॉलिसी नोट लेक्स कंसेंशन का मतलब यही है, जो कंसेंसस है दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट इट इज़ नॉट परमानेंट. इट हैज़ सेवरल की फीचर्स ऑफ द सोल्यूशन दैट कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू पॉलिटिकल डिसीजंस. ओके, ऐसा कोई फर्म पॉलिसी नहीं है. वो पॉलिसीज जो बननी हैं, जो उनके फीचर्स डिसाइड करने हैं, दे कुड only be done with the help of political decisions. Okay, so those are to be taken by each and every country separately. तो ये बोल रहे हैं that there is no consensus. Okay, अब see the political action, see the
major thing in a country is that whatever happens in a country, it happens only because of political will. ठीक है, आप कहीं भी चले जाइए, आप एनआरकी में चले जाइए, आप डेमोक्रेसी में चले जाइए, ओके, आप कहीं पे भी चले जाइए, all the things, okay, it happens only because of political will. पॉलिटिकल विल का मतलब ये है दैट इफ द पॉलिटिकल डिसीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, दे शुड बी इन द फेवर ऑफ पीपल ओनली, दे शुड बी इन द फेवर ऑफ कंट्री ओनली. वो टैक्सिंग राइट हो या कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, वो सारे के सारे पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू ही सॉल्व किए जा सकते हैं. तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया दैट द शॉर्ट ऑन प्रिंसिपल्स, ओके, जो आपका एक्शन प्लान फॉर वन है, वो जो है इट शॉर्ट ऑन अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, उनके कोई डिटेल्ड प्रिंसिपल ही नहीं है. Okay, so that is the point that is being talked about. Now what is the conclusion of discussing all of this? हमने OECD डिस्कस किया, हमने BEPS डिस्कस किया. BEPS देखिए लीगल है, तो अब अगर लीगल है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशन होना ज़रूरी है, या राइट. सो तो कंक्लूजन क्या है, हम क्या समझे ये पूरा डिस्कस करने के बाद, ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. See, in the absence of a consensus, the uncertainty caused by unilateral measures is expected to add to the tax woes of the multinationals. ठीक है, ये बात हुई है कि यूनिटी नहीं है, कंसेंसस नहीं है, जो आइडियाज़ हैं वो दे आर नॉट वॉकिंग इन अ सिंगुलर लेन. तो इसका मतलब ये है दैट द टैक्सेशन दिस वोज दे वुड कीप ऑन एडिंग. हाउ, सी, अगर जो टैक्सेशन अवॉइडेंस है, अगर टैक्स अवॉइडेंस है, अगर वो बढ़ता रहेगा, तो जो कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर्ड टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. क्योंकि जो OECD है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जो होली डेवलप्ड हो या फिर जो सारी की सारी डेवलपिंग हो. दैट इज़ द मिक्सचर. OECD इज़ द मिक्सचर, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ पे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं. तो यहाँ पे वही बात हो रही है दैट the lack of consensus, it would lead the countries which are developing or which are less developed, to the economy clash. क्योंकि MNCs अगर आपको टैक्स पे नहीं कर रही हैं, अगर आपका टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन है वही बहुत कम है, तो यू आर नॉट गोइंग टू रीच ऑन दैट द प्रोजेक्टेड this GDP जो आप सोच के रखते हैं. You are not going to reach there. So this is being talked about that whether these BEPS practices should be stopped or not, and if these are to be stopped, then this needs a whole political decision. Okay, so this is what they are talking, and this basically the point is that this is they are referring to the dominance of big tech companies. अब आप देखिए, नाम तो मैं ले नहीं सकती अब किसी भी कंपनी का यहाँ पे, बट आप इंडिया में ही इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं दैट हाउ सम बिग टेक कंपनीज या फिर कोई भी जो बिग बिजनेस फर्म्स हैं वो कैसे इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं. दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल मेजरली, प्रीडोमिनेंटली तो उन्हीं का हाथ होता है ना जो इकोनॉमीज होती हैं उसमें. तो ये चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हैं. तो अब एक बात देखिए, अगर ये जो कंपनीज हैं, अगर आप इनका जो इनकम टैक्स से बचने के तरीका है वो लीगल है, तो अगर वो पे नहीं कर रही हैं, तो जो छोटे फर्म्स हैं जो वॉलंटरी टैक्स दे रहे हैं, वो भी कुछ समय बाद दे वुड ऑल्सो स्टॉप पेइंग द टैक्सेस. So now you know that where these practices are leading us. Okay, so this is the entire picture of BEPS. Now let's come to our next news article. This is Center notifies draft rules for industrial relations code. तो आपकी जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने अभी ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के.
तो इट हैज़ पेव्ड वे फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयर्स। आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं ये उनको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी टू रिट्रेंच वर्कर्स वाइल मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर यूनियंस टू गिव प्रायर नोटिस बिफोर अ स्ट्राइक। ओके तो ये है आपके ट्रेड यूनियन के बारे में। अगर वो कोई भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो जो उनको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जो वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अगर उन्होंने कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया। अगर ट्रेड यूनियन कोई भी स्ट्राइक करने जा रही है तो इट हैज़ टू गिव अ प्रायर नोटिस टू द employer, and if it doesn't happen then the employer can take any action against the union। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ये रिप्लेस करने वाला है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रूल्स जो 1949 में आया था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रूल्स जो 1954 में आया था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल्स जो 1946 में आया था। ओके देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूल्स जो 1957 में आया था। ये कुछ ऐसे these are some of the points जिनको रिप्लेस करने वाला है आपका जो नया इंडस्ट्रियल कोड रेगुलेशन कोड आया है वो। ओके सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस कोड। ओके तो पहला जो पॉइंट है वो आपका देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि अब एम्प्लॉयर को जहाँ पे भी फ़ायदा होता है उस चीज़ को आप जल्दी से रिलेट कर दीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब जो है वो बढ़ गया है, इट हैज़ नाउ इन्हेंस्ड। Okay, so establishment with more than 300 workers will have to seek government approval to lay 15 days in prior to lay off the intended actions। ओके जो 15 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। द लिमिट वॉज 100 एम्प्लॉयज़ अर्लियर। पहले जो 100 एम्प्लॉयज़ थे अगर वो आपके होते थे तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता था, बट नाउ अगर आपके पास 300 तक वर्कर्स हैं उसके ऊपर अगर एक्सीड करते हैं तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके तो अब उनके लिए ये इजी हो गया। सो इट इज़ रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट रिस्ट्रिक्ट्स द वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। ओके तो आपने देखा था कि काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे इसको लेकर। तो क्योंकि इसमें जो वर्कर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है स्ट्राइक से, ऐसा बोला जा रहा है। और पॉइंट हियर इज दैट दे हैव टू गिव द प्रायर नोटिस बिफोर these to the employer, okay, before performing any kind of strike. So this restricting of strike, this is being said that this is restricting the workers from going on strike. It prescribes subscription charges to the trade unions and make it difficult for unions to go for collective bargaining। ओके सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस कि जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं नाउ दे कैन नॉट ईजिली गो फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। उनका काम क्या होता है, दे बेसिकली निगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग वॉट एवर डिमांड्स दे हैव। तो अब उनको ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो क्लोजर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है शुड बी डन आफ्टर सीकिंग 60 to 90 days प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके जो स्टैब्लिशमेंट है आपकी जो फर्म है उसका क्लोजर जो है वो 60 to 90 days आपको एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ओके सो दिस कोड हैज़ ट्वीक्ड द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री as it took out the eminent institutes, especially those related to defense and space such as DRDO and ISRO out of its purview। तो जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड कोड है उसमें क्या हुआ है, जो आपके डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसके जो DRDO और इसरो हैं उसके परव्यू से बाहर हो चुके हैं आपके ये दो इंस्टीट्यूट्स। सो इट हैज़ basically changed the definition of industry. So now these two, DRDO and ISRO, they do not come under the ambit of industry। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। Okay, so government has also proposed occupational safety, health and working condition code and the social security code। तो जो पहला कोड था इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड, उसमें क्या हुआ था, हमने एम्प्लॉयर्स की बात की थी कि कैसे उनके लिए ईज ऑफ डूइंग जो है वो बढ़ चुका था। अब जो दूसरा है उसमें ये बात करी गई है दैट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ है।
सोशल सिक्योरिटी कोड जो है इट विल रिप्लेस 9 सोशल सिक्योरिटी लॉज। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि उसमें भी कुछ लॉज थे जिनको रिप्लेस किया गया था। सो द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसमें क्या करेंगे, जो आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे एंड स्पेल्स आउट ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा अंडर दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ओके, तो जो आपके आवर्स ऑफ वर्क है, आपकी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स की, उसको ओवरऑल मैनेजमेंट के अंडर लाया जाएगा। ओके, that is the point. Now 6 women led startups win COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज। तो ये जो है आपके ये एक जेंडर रोल, ओके, सो स्पेसिफिकली जेंडर रोल के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है दैट माय गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ यूएन वुमेन। तो यूएन वुमेन एक दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन, तो उसने माई गॉव, ठीक है, माई गॉव के साथ मिलकर एक दिस 6 वुमेन लेड स्टार्टअप्स इनको लॉन्च किया है। तो उन्होंने श्री शक्ति चैलेंज जीता है। सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, टू एनकरेज एंड इन्वॉल्व वुमेन लेड स्टार्टअप्स, जिससे कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आए टू फाइट कोविड-19 और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, सो दैट द अदर वुमेन कुड ऑल्सो बी एनकरेज्ड एंड दे कुड ऑल्सो हैव अ गुड इम्पैक्ट। ओके, सो द चैलेंज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2 स्टेजेस, आइडिएशन स्टेज एंड प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो 2 स्टेजेस थे आपके जो चैलेंज था उसमें, श्री शक्ति चैलेंज जो उसमें 2 स्टेज थे। पहला जो स्टेज था उसमें आपको आइडिया देना था, आपका जो भी आइडिया था आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, और जो दूसरा स्टेज था उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना था दैट हाउ इज दिस एप्लीकेबल, यू हैव टू प्रूव दैट दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बातें कर दी। सो वट एवर you have said, you just tell us that how do you prove that. Okay, so the women led startups have won that. कैश प्राइज इसमें मिलता है 5 लाख ईच फॉर टॉप 3 विनर्स, 2 lakhs मिलता है 3 स्टार्टअप्स चोजन फॉर their promising solutions. और top 3 entries were selected as winners, and in view of high quality of solutions presented, 3 additional entries were recognized as promising solutions. ओके, जो 3 आपके विनर्स थे उनके अलावा 3 और एडिशनल एंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया है बिकॉज दे हैड प्रॉमिसिंग सोल्यूशंस। सो इनके विनर्स जो है मैंने आपको बताया 3 वुमेन, जो ये पूरे 6 के 6 वुमेन लेड स्टार्टअप ही हैं। उसमें रिसाडा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड, तन्मात्रा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये चैलेंज जीता है। सो जो प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस के लिए जो विनर्स हैं वो हैं सेरा गेन बायोथेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एम्पैथी डिजाइन लैब्स, स्ट्रीम माइंड्स। तो ये 3 और हैं। तो अब हम जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। उसने अपने रिव्यूज दिए हैं ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। ओके, सो दिस इज द चार्ट जिसमें हम ये देख रहे हैं दैट मिज़ोरम जो है आपका स्टेट, उसमें जो 100% टारगेट है वो आपका 22 और 2023 के बीच में अचीव किया जाना है। तो अभी कितना कवर हो चुका है, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? 1.02 लाख हाउसहोल्ड्स डू नॉट हैव हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस आउट ऑफ 1.27 लाख रूरल हाउसहोल्ड। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई, दोज हु आर न्यू टू देम, कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो वो जल जीवन मिशन को उसने लॉन्च किया है। उसके अंडर क्या डिसाइड किया गया है कि हर एक हाउस होल्ड में हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे, कि जो हाउस होल्ड टैप्स हैं वहाँ पे आपका सेफ वाटर दैट इज सेफ फॉर यूजिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिज़ोरम का स्टेटस बताया गया है, ओके, एंड छत्तीसगढ़ का स्टेटस बताया गया है, राजस्थान का स्टेटस बताया गया है यहाँ पे, एंड सिक्किम का स्टेटस बताया गया है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द कवरेज ऑफ चुरू, ओके, जो कवरेज ऑफ चुरू है, चुरू डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया
एंड गेटवे टू द थार डेजर्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो चुरू है राजस्थान में, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया? दैट इज द आंसर इज चुरू। And the question could also be that what is the gateway to the Thar desert? So the answer is the district Churu. Okay, so here is the answer. Now हर घर जल, तो मैंने आपको बताया कि जल जीवन मिशन में आपको सिंपल सी बात है कि सेफ और एडिकेट ड्रिंकिंग वाटर आपको हर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू पहुंचाना है बाय 2024, ओके, इन रूरल इंडिया। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ JJM, आपका जल जीवन मिशन। तो JJM एम्स एट प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर एट सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ये इनका टारगेट है। तो ये इनको हर रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे ये? इनकी जो दूसरी थ्रू FHTC, दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। तो इसको जो लीड कर रहा है, ओके, द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ओके। अंडर द मिशन स्पेशल फोकस इज ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए, ये जो JJM है आपका, इसमें आप एक चीज़ समझिए कि दिस इज समथिंग विच इज फोकसिंग ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाउ इज इट फोकसिंग? आपका जो राजस्थान का एरिया है या जो आपके रिमोट स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं वो जाते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है वो काफ़ी दूर होते हैं उनके घरों से, तो उसको वाटर कलेक्ट करने के लिए जो वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबल जो घर है वो होता है। तो इसकी वजह से दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस मिशन इज फोकसिंग ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन इनडायरेक्टली। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका JJM है, इज इट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ दिस सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल हाउस होल्ड ओनली? द आंसर इज नो. It is also focusing the special point of this article is that only कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि that how is it focusing on women and children. Okay, these women and children, their health is affected because of this traveling so much of distance for collecting water. Yeah, so that is the highlight of this article. Okay, so the next point here is that जम्मू एंड कश्मीर ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट। इससे पहले भी हमने जम्मू एंड कश्मीर की बात करी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आपकी डोनर है, डोनर मिनिस्ट्री, ठीक है, डोनर मिनिस्ट्री, वो डोनर मिनिस्ट्री नहीं कि दे दिया वाला डोनर, इट्स नॉट लाइक दैट। डोनर मिनिस्ट्री इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यही है जो आपके जो जम्मू एंड कश्मीर में, आपको याद हुआ हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि मानसार लेक, ओके, मानसार लेक में जो रिजुविनेशन है वो उसके लिए काम चल रहा है, ओके, जो आपकी मानसार लेक है उस पर भी, तो उसको भी डोनर मिनिस्ट्री ही कर रहा है। तो अभी उसने कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जो सेंटर गवर्नमेंट चला रही है वहाँ पे, जो जम्मू एंड कश्मीर आपकी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे, तो उसके अंडर उधमपुर दोदा कठुआ जो एक पासवे है, इज पॉसिबली ओनली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री विच हैज़ रिसीव्ड 3 मेडिकल कॉलेजेस इन 3 years. ओके, सो हियर दे आर टॉकिंग दैट जो आपका उधमपुर डोडा कठुआ है, दीज आर द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके, ऑल टुगेदर दिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज it is the only लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी that has received 3 medical colleges in 3 years. Okay, so that is the positive sign for J&K union territory. So this is something to be understood and this is the positive sign for the people of J&K. ओके, जिसको अभी आपने देखा था रिसेंटली, वो जो आपका आर्टिकल 370 एंड 35A है उसको अबॉलिश करने के बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी फास्ट कर दिए गए हैं। Okay, so that is the point here. So I think this is all about the this video, whatever we studied. I hope that is going to help you in your preparation, and also if you have studied all the things in the November itself, but these videos are going to help you for your revision.
लाइक ऑल द आर्टिकल्स दैट वी आर डिस्कसिंग, आप उसमें जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, आप सब सारे टॉपिक्स के यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स में कलेक्ट कर लेती हूँ, लाइक द दीज इकोनॉमिक्स, द फाइनेंशियल न्यूज़ एंड ऑल्सो अदर जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो सोशल इशूज से रिलेटेड हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, और आपके जितनी भी नेशनल न्यूज़ है हमने उसके बारे में भी ये जो वीडियोज़ हैं हम उनके थ्रू पढ़ रहे हैं. Okay, so I hope you all are liking the videos and keep learning with us. Thank you so much.